وفاقی اور سندھ حکومت کو کراچی شہر کا ڈیزائن دوبارہ بنانے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے پنجاب کالونی، دہلی کالونی، پی این ٹی اور گزری روڈ پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کی ہدایت بھی کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی آئی اے کی زمین پر شادی ہال آج ہی گرائیں، کالا پل سے متصل اراضی پر جھگیاں ختم کر کے پارک بنائیں۔ کے پی ٹی کی زمین پر بھی غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم۔ سندھ حکومت پر بھروسہ کیا تو کچھ نہیں ہو پائے گا، عدالت کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنے ہی صوبائی اداروں پر عدم اعتماد کر دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے، کمیٹی بنانا ہمارا کام نہیں، حکومت چاہے تو خود کمیٹی بنا دے۔ کراچی ایک میگا پرابلم سٹی بن چکا، گلیوں سے آدمی نہیں گزر سکتا، مزار قائد تک چھپ کر رہ گیا۔ تمام مقدمات کی سماعت 21 فروری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، بڑے فیصلے۔ مراد علی شاہ کا غیر قانونی عمارتیں گرانے کا حکم، گزری سب میرین چرنگی کے قریب عمارت کو 1 ماہ میں گرانے کی ہدایت۔ گزری سے زمزمہ کو ملانے والی شاہراہ پر تجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم۔ چڑیا گھر میں ہاتھی لانے، اسٹیڈیم روڈ پر سبزہ لگانے کا فیصلہ۔ وائی ایم سی گراؤنڈ اور ککری گراؤنڈ کو بہتر بنایا جائے گا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے کشمیر کانفرنس کا انعقاد، صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان کی خصوصی شرکت۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ، پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود، بھارتی مظالم کی مذمت، بربریت کا نشانہ بننے والے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ بھارت کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے، عالمی برادری کی خاموشی اور بے حسی افسوسناک ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کی برمنگھم میں 92 نیوز سے گفتگو۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خوبصورت تقریب، دیواروں پر کشمیر کی تصاویر اور پوسٹرز آویزاں۔ بھارتی مظالم کے حوالے سے ڈاکومنٹری کی نمائش، پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا، سفیر پاکستان اسد مجید خان کا خطاب۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں پارلیمنٹ کے سامنے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ، پاکستانی، کشمیری اور مقامی اراکین پارلیمنٹ شریک، مقامی شہریوں کی مودی کی پالیسیوں اور بھارتی مظالم پر کڑی تنقید۔ متحدہ عرب امارات، بیلجیم، روس، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی یوم یکجہتی کشمیر کی تقاریب، اوورسیز پاکستانی اور کشمیری شریک، فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ آئرلینڈ میں عام انتخابات کے لیے میدان سج گیا، شہری کل اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پاکستانی اور دیگر ایشیائی کمیونٹیز بھی اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کے لیے پرجوش۔ لیڈز میں شدید دھند سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، شہریوں کو دفاتر اور طلباء کو اسکول جانے میں مشکلات کا سامنا، درجہ حرارت گرنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اور نیو یارک فیشن ویک تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جاری، دنیا بھر سے ڈیزائنرز اپنی تخلیقات کی نمائش میں مصروف۔ جاپانی ڈیزائنر تاداشی شوجی نے موسم سرما اور خزاں کے ملبوسات کی نمائش کی، جس میں منگولین انداز کی جھلک نمایاں تھی۔ فیشن ویک 13 فروری تک جاری رہے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو سرعام پھانسی پر لٹکانے کی قرارداد قومی اسمبلی نے منظور کر لی۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے کچھ وزراء اس عمل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ منشیات کی فیکٹری کے چرچے اور اپوزیشن اتحاد میں پڑنے والی دراڑوں پر بات ہوگی اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر کراچی کا، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان تجاوزات پر کوئی رعایت دینے کو تیار نظر نہیں آ رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے وفاقی اور سندھ حکومت کو کراچی کا جامع پلان بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب کالونی، دہلی کالونی، پی این ٹی اور گزری روڈ پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کے احکامات بھی جاری ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بلند عمارت گرائیں اور پارک بنا دیں۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات پر سپریم کورٹ برہم۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد نے پنجاب کالونی، دہلی کالونی، پی این ٹی اور گزری روڈ پر تجاوزات گرانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ان علاقوں میں تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں، بتایا جائے 9 منزلہ عمارتیں کیسے تعمیر ہوئیں، کنٹونمنٹ بورڈ میں ایسی تعمیرات کی اجازت کون دے رہا ہے، بلند و بالا عمارتیں گرا کر پارک بنائے جائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی آئی اے کی زمین پر شادی ہال آج ہی گرائیں، کالا پل سے متصل اراضی پر جھونپڑیاں ختم کر کے 3 ماہ میں پارک بنایا جائے۔ شہری حکومت کام کر رہی ہے، نہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں۔ کراچی میگا پرابلم سٹی بن چکا ہے، گلیوں سے آدمی نہیں گزر سکتا، مزار قائد تک چھپ کر رہ گیا۔ عدالت عظمیٰ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو شہر کا جامع پلان بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ کراچی کا دوبارہ ڈیزائن ترتیب دیا جائے، سول انجینئرز، ماہرین اور ٹاؤن پلانرز کی رائے لے کر تجاویز دی جائیں، جدید شہر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے صوبائی اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت پر بھروسہ کیا تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، متعلقہ ادارے سب اچھا ہی کی رپورٹس دیتے رہیں گے، عدالت کو مداخلت کرنا ہوگی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کمیٹی بنانا ہمارا کام نہیں، حکومت چاہے تو خود کمیٹی بنا دے۔ عدالت نے تمام مقدمات کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔ کراچی شہر کے بعد زیر سماعت آیا کراچی پورٹ ٹرسٹ کا معاملہ۔ سپریم کورٹ نے کراچی پورٹ ٹرسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کے پی ٹی کی زمین صرف پورٹ کے مقاصد کے لیے استعمال کی جائے، 2 ماہ میں عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ پی ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ سپریم کورٹ تک جا پہنچا۔ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے دوران سماعت کے پی ٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 2 ماہ کے اندر اندر احکامات پر عمل درآمد کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے۔ چیئرمین کے پی ٹی اور چیف جسٹس کے درمیان مکالمہ بھی ہوا۔ چیئرمین کے پی ٹی نے کہا کہ امریکی کونسل خانے کو دی گئی زمین واپس کیسے لیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی، حکم واضح ہے، اپنی تشریح مت کریں۔ جسٹس نے پوچھا کہ آپ کا پلاٹ بھی کے پی ٹی میں ہے۔ چیئرمین کے پی ٹی نے جواب دیا ان کا کوئی گھر کے پی ٹی میں نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا اپنا ہی بورڈ آپ کو کیسے زمین الاٹ کر سکتا ہے، یہ سب غیر قانونی ہے جسے روکنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس یہ کہ وہ آج چیف جسٹس ہیں تو کیا سپریم کورٹ اپنے نام پر الاٹ کر سکتے ہیں؟ کیا صدر اور وزیر اعظم اپنے آپ کو زمین خود دے سکتے ہیں؟ پورٹ پر زمین صرف پورٹ مقاصد کے لیے ہی استعمال کریں۔ ناظرین، مریم نواز کی بیرون ملک روانگی کے معاملے پر وفاقی اور صوبائی وزراء نے مسلم لیگ نون کو نشانے پر رکھ لیا۔ شیخ رشید بولے اس بار وفاقی کابینہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ وفاقی اور صوبائی وزراء نواز شریف کی علاج سے پہلے مریم کی لندن میں موجودگی کی ضد کو خوب رگڑا لگانے میں مصروف۔ فردوس عاشق امان نے کہا یہ علاج ہے، کوئی بارات نہیں، ضدی مریض کی خواہشات پر قانون نہیں توڑا جا سکتا۔ ایک ضدی مریض کی نظر کیا جائے وہ قانون، تو ضدی مریض تو لینے گئے تھے دوائی، تو جس مقصد کے لیے بیل لی تھی، آج اتنے ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ ہاسپٹل نہیں گئے۔ شیخ رشید نے دعویٰ کیا وفاقی کابینہ مریم نواز کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ نواز شریف کے بیٹے اور ایک بیٹی وہاں موجود ہے، کسی ایک کو تو یہاں رہنے دیں۔ مریم کے بارے میں میری ریزرویشن ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں وہاں پہ، ایک بھائی ہے وہاں پہ، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی دوسری بیٹی ہے وہاں پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر فیصلہ کریں تو اس کا فیصلہ ہے یا عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن میں اس وقت کیبنٹ کی یہ صورتحال نہیں دیکھ رہا کہ مریم کو باہر جانے کی اجازت دی۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے تنقید کی، دنیا میں پہلی بار مریض کی ہڑتال سنی، ثابت ہوا کہ نواز شریف کی بیماری جان لیوا نہیں۔ نواز شریف صاحب جو اس حالت تک پہنچے ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ اور ٹیکوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آل شریف، سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کسی کے گھر کی باندی یا غلام نہیں ہے۔ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے
बेटी को बाहर जाने की इजाज़त ना देकर और इस इशू को प्रोपोगेट करके वो कोई लोगों की हमदर्दियाँ जीत लेंगे। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने चंद रोज कबल इंकशाफ किया था कि नून लीगी कायद ने मरियम की लंदन में मौजूदगी के बगैर इलाज कराने से इनकार कर दिया था। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर आज़ाद कश्मीर, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप ऑन कश्मीर के MP खालिद महमूद, MBE मुश्ताक लाशारी, लॉर्ड कुर्बान, MP अफजल खान, MP मोहम्मद यासीन, MP नाज शाह, बैरूंस वारसी, जॉन होर्थ, फ्लिप बैनन समेत इंसानी हुकूक की तंजीमों के आला हुक्काम ने शिरकत की। आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का कहना था कि बातों का वक्त गुजर चुका है, अब अमली इकदाम होने चाहिए। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया के हुक्मरान जमात के MPs ने यकीन दहानी कराई है कि सारे हमारे साथ खड़े हो गए, बैनुल अक़वामी मीडिया खड़ा हो गया है, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट्स दुनिया की बशमूल बरतानिया की पार्लियामेंट अगर हमारे साथ खड़े हो गए तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि जो मुक़्तदर इदारे हैं, मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जो हुकूमतें हैं बड़े बड़े ममालिक की, वो खामोश हैं या वो मुबहम बयान दे रहे हैं या वो ये जो है कश्मीरियों के हक़ में खुल कर नहीं बोल रहे हैं। तो इस जमूद को हमने तोड़ना है, इस खामोशी को हमने तोड़ना है। और मैं समझता हूँ कि जब इन्हीं की आबादियों का, जब इनकी पार्लियामेंट्स का दबाव बढ़ेगा तो ये जो है फिर इन्हें फैसले लेने पड़ेंगे कश्मीर के हक में। हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि बरतानवी पार्लियामेंट बहुत जल्द कश्मीरियों के हक में करारदाद पास करेंगी। बहुत बड़ी तादाद पार्लियामेंटेरियंस की जो है यहाँ पर भी मौजूद थी, और यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस जो MEP वहाँ पर थे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में, वहाँ पर भी जो है वो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने यहाँ पर आके अपने ख़यालात का इज़हार किया है और सॉलिडारिटी का इज़हार किया, और हर आदमी ने इस जुमले को मतलब इस्तेमाल किया है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। सईदा वारसी ने कहा कि उनके ख़ानदान का ताल्लुक भी कश्मीर से है। अगर उनका ख़ानदान बरतानिया ना आता तो हो सकता है वो उन मजलूम ख़ातीन में से होती जो कश्मीर में जुल्म सह रही हैं। On this important day. Firstly, by the British government as a bilateral issue, which needs to be resolved with discussions, bilateral discussions between India and Pakistan, of course, taking into consideration the wishes of the Kashmiri people. सियासी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन है, जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमें खामोश हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी खातीन और नौजवानों को भी तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कश्मीरी लीडर्स से और जितने हम पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं कि जितने भी हो सकें हम पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने MPs को यूरोपियन पार्लियामेंट में और यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर एक को रेगुलर बेसिस पे ईमेलें भेजें। जितनी हम अवेयरनेस कर सकते हैं वो हम करें। आज जो यहाँ यौम यकजहती के हवाले से यहाँ इवेंट हुआ है, ये बेसिकली कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती के लिए ही बनाया गया है, और उन लोगों को ये बताने के लिए ये रखा गया है कि ताकि वो ये न महसूस करें कि दुनिया उनको भूल चुकी है। हम सब उनके साथ हैं और उनकी स्ट्रगल की हम हिमायत करते हैं। बहुत अच्छा इवेंट हुआ है और बहुत अच्छा पैगाम गया है, और जिस तरह हाई कमिश्नर साहब ने और तमाम स्पीकरों ने ये रिक्वेस्ट की है कि कम से कम इस पैगाम को लेके जाएं और इसको वाइड करें। तो हमारे दोस्तों में ये भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि इन फेसबुक पे और जहाँ जहाँ अपने नॉन पाकिस्तानीज हैं उन सबको इसका हाईलाइट करें। हमारी दुआएं भी है, और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है ख़ास तौर पे खारजी महाज पर कि जनाब खारजी पॉलिसी को तेज़ करें। अब तक का जितना भी प्रोसेस रहा है वो बॉर्डर के दोनों तरफ ही इतना इफेक्टिव नहीं रहा। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें नई चीज़ें, नए तरीके से चीज़ों को देखना होगा और री इन्वेंट करना होगा। आज जो सॉलिडेरिटी डे इधर हाई कमीशन की तरफ से मनाया गया है, जिसमें पूरे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पे ये एक अच्छा मैसेज है, हम कश्मीरियों के साथ हैं। एक नई गाइडलाइन दी गई है कि हिंदुस्तान को जो है वो बाज रखने के लिए वहाँ पर पाबंदियाँ आयद की जाएँ, और हिंदुस्तान को बिल्कुल असला जो मुल्क फराहम कर रहे हैं उनको रोका जाए कि वो असला मज़ीद फराहम ना करें। हम जो है अप्रिशिएट करते हैं हाई कमीशन को कि उन्होंने कश्मीर के मसले को उजागर किया है,
اور دوسری جگہوں پہ بھی ایسی تقاریب ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ 5 اگست سے تاریکی اور ظلم اور بڑھ گیا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب تاریکی بڑھتی ہے تو طلوع قریب ہونے والا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری آزادی قریب ہے. I'm here in solidarity of the Kashmiri people that now have been under this communication blockade for 185 days. That's like half a year, and it's important to keep the issue alive. ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات پہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ 6 ماہ سے ان کو کشمیر کے اندر لاک اپ کر دیا گیا ہے. ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کو باور کرایا جا سکے کہ کشمیری کس قرب سے گزر رہے ہیں. سابق MEP جان ہاورتھ نے کہا کہ عالمی برادری بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کرے اور کشمیر میں جاری مظالم رکوائے. I'm here today because it's Kashmir Solidarity Day. Because I want, as a former member of the European Parliament, to express my solidarity with people of Kashmir who are living under intolerable conditions. پر کی طرح پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا. برٹش MPs کا کہنا تھا کہ دنیا کشمیر میں جاری بھارتی سیاسی دہشت گردی کا نوٹس لے اور بھارت پر معاشی پابندیاں عائد کرے. ساتھی رپورٹر علم تنویر کے ساتھ غلام سے عنوان 92 نیوز لنڈن. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پاکستان قونصلیٹ گلاسکو میں بھی تقریب ہوئی جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے پاکستانی اور کشمیری سیاسی و سماجی شخصیات شریک ہوئیں. شاہد میر کی یہ رپورٹ. اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کے پاکستانی قونصلیٹ میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شرکا نے آخری دم تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دینے کا اعادہ کیا. قونصلیٹ جنرل رومان احمد، ڈاکٹر جوید گل اور دیگر مقررین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھارت نے 6 ماہ سے نہیں بلکہ 70 سال سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگا رکھا ہے. بھارتی حکومت اور فوج نے بچوں اور خواتین کا جینا بھی مشکل کر دیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور مظلوم کشمیری بہن بھائی سکھ کا سانس لیں گے. اب دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کی جد و جہد اور قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی. اوورسیز پاکستانی اور کشمیری شخصیات نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کی جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک بار پھر انہیں یقین دلاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک یا شخص ان کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن پاکستانی ان کو ساری زندگی ساتھ دیتے رہیں گے اور ہمیشہ ساتھ نبھائیں گے. یہی پیغام ہے میرا کہ اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ ہم سب حصہ ڈالیں گے تو ہوپ فلی وہ دن بھی ہمیں نظر آئے گا جب ہمارے کشمیر بہن بھائی اپنی اس حق کا استعمال کریں گے اور اپنی خواہشات کے حساب سے کریں گے. آج سینٹ امریکن سینٹ میں بھی آواز اٹھ رہی ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں بھی اٹھ رہی ہے اور جو صدارتی امیدوار ہیں وہ بھی اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہندوستان نے اقدام اٹھائے ہیں اس سے آزادی کی منزل ہمارے قریب ہوگی نہ صرف دور ہوگی. بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے جس کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان نے ہر فورم پہ اس نے یہ ایشو اٹھایا. تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ یہ بربری بند کرے. اس ایشو کو نہ انڈین نے اٹھانا ہے، نہ برطانیہ نے اور نہ امریکہ نے. ہم سب نے مل کر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ دینا ہے. This is very important that we have the international community with us on a human level and a level of our Muslim brothers and our Pakistani brothers and Kashmiri brothers. We of course wish that they are free to make their own decisions, for them to make their own choice and what they want to run, how they want to run their country. پوری دنیا کی تاریخ میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان میں سب سے بڑی ایک مثال جو ہے اس وقت کشمیر میں جاری ہے. پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ایشو کے اوپر کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کشمیری بچوں کو جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادتیں دی ہیں. میں ان بوڑھوں کو سلام پیش کرتا ہوں، کشمیریوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ مودی سرکار کو یہ ضرور بند کرنا چاہیے اور یہ ہمارے مسلمان کنٹری کے جو ہمارے لیڈر ہیں اور یہ USA کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، یہ ان کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں. اس موقع پر مقررین کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت دلوائیں تاکہ خطے میں امن و سلامتی کا فروغ ہو. پاکستان قونصل گلاسکو میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں
जब कश्मीर आज़ाद होगा कश्मीरी बहन भाई जो हैं वो सुख का साथ लेंगे और इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज के साथ 92 न्यूज़ ग्लासगो स्कॉटलैंड। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। उनका कहना है कि कश्मीरियों पर इंसानियत सोच मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन अक़वाम आलम की तरफ से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं मिल रहा। बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका ये दौरा कैसा रहा है कश्मीर के हवाले से खुसूसन। सदर साहब बहुत शुक्रिया 92 को टाइम देने का। आप बताएं कि कैसा रहा है आपका ये दौरा। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं, आपके 5 साल मुकम्मल हुए। थैंक यू। तो आपके टेलीविज़न नेटवर्क ने बड़ी तरक्की की है और इस सिलसिले में तमाम जो भी वहाँ की इंतज़ामिया है, मालिकान हैं और कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, टेलीविज़न एंकर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपने दुरुस्त कहा कि यहाँ मैं यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में आया हूँ और बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंसेस रही हैं, यानी इस एतबार से कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट के अरकान हैं उन्होंने ये कहा है कि वो मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए, कश्मीरियों की वकालत करने के लिए, उस मुकदमे को जो है सही तरीके से पेश करने के लिए कश्मीरियों की मदद करेंगे। और वो ये समझते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ है, यानी ये सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि हम कश्मीरी या पाकिस्तानी उनके पास जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि ये उनका फ़र्ज़ बनता है बरतानवी शहरी के तौर पर, बरतानिया के कायदीन के तौर पर। तो इसके लिए हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 6 माह से भी ऊपर दिन गुजर चुके हैं, तो अभी तक इंडिया पर उस तरह असर अंदाज ये हमारे प्रोटेस्ट नहीं हो सके, इसकी कोई मेन वजह क्या हो सकती है? जो आपने मुजाहरे किए हैं, रैलीज़ मुनक्किद करवाई हैं, कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उसका असर तो हुआ है। वाशिंगटन हो, ब्रसल्स हो, लंदन हो या दुनिया के और कैपिटल्स हों। लेकिन ये बात आप सही कह रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद सलामती काउंसिल ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया, या दुनिया की जो बड़ी अक़वाम है, अमेरिका है मिसाल के तौर पर, उसने हिंदुस्तान को ये पैगाम नहीं दिया वाज़े तौर पर कि तुम कश्मीर में अपना कब्ज़ा ख़त्म करो, या जो उसने गैर कानूनी इक़दामात किए थे कि उनको वापस ले। तो ये हमारी जद्दोजहद तहरीक का अब अगला हदफ है, तो हम इन रियासतों को इंशाअल्लाह मनवाएंगे। क्या आप अपने जो सफ़ीर कश्मीर हैं उनकी जो काविशें हैं कश्मीर के हवाले से उससे मुतमईन हैं? आपका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं 5 अगस्त से लेकर अब तक जो कोशिशें की हैं उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि, और ये मैंने मशवरा भी दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म साहब को भी, वज़ीर ख़ारजा को भी, कि हम उस वक्त कामयाब नहीं होंगे जब तक कि कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आयरलैंड में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मुकामी आयरिश अवाम के साथ वहाँ मुकीम दीगर कम्युनिटीज़ भी वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी को नई क़यादत से क्या तवक्कुआत हैं, ये जानने के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्ज़ा से, जो इस वक्त कम्युनिटी अरकान के साथ हैं। जी फैसल, क्या कहना है पाकिस्तानियों का? आज हम मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तानी सियासतदान अमार अली के साथ, जिन्होंने रिसेंटली इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको पता होगा कि दे आर इन बिग नंबर्स दीज कम्युनिटीज़ एंड दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर इश्यूज़। जो यूके में आप देखते हैं या कनाडा में होते हैं, आप देखते हैं कि कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उनके मसाइल कम्युनिटी के उन पॉलिटिशियंस तक पता चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इस दफ़ा हमारे बहुत भाइयों ने टेक पार्ट किया है, इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, और माशाल्लाह इंडिया कुछ लोग जीते भी हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, और लोगों को एक करेज मिलेगी कि वो पार्टिसिपेट करें। देखिए, मैं जो बिलीव करता हूँ कि अगर हम इधर आ गए हैं तो अब हमें इधर अपना मुल्क समझ के इधर अपने रोल प्ले करना है। तो दीज आर वेरी क्रूशल इलेक्शन, जिसमें हमने अपनी आवाज़ को उधर तक पहुँचाना है, पार्लियामेंट तक। बिज़नेस कम्युनिटी के क्या मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे हमारी जो पाकिस्तानी और इंडियन बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिज़नेस कम्युनिटी को अगर ले सामने रखा जाए इलेक्शन के सामने, तो यस हर्डल्स तो बहुत हैं फॉर श्योर।
सेटलिंग डाउन इन आयरलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उसके बाद अपना बिजनेस को स्टार्ट करना, रन करना और सारे लॉज को, पॉलिसीज़ को फॉलो करना, तो उसके हिसाब से काफ़ी हर्डल्स हैं. हमारा तो जैसे सुपरमार्केट का बिज़नेस है, इंपोर्ट्स का काफ़ी रोल प्ले करता है इसमें, तो उसके बेसिस के ऊपर दे डोंट नो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज दे नेवर बीन थ्रू, यू नो. हम वी डोंट ब्लेम देम, बट बिकॉज वी नीड आवर पीपल इन सर्टन एरियाज who understand what is this type of product, what are the import tariffs, what are exactly rules to follow. I mean, if you see UK or Ireland, UK में कितना import हो रहा है अभी large scale में, तो it's because they know what exactly is happening. तो it's a big impact. अगर हमारे अपनी कम्युनिटी के बंदे सामने में आते हैं, एफर्ट करना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए, वोट करना चाहिए सबसे पहले, तो सामने आके देखें. यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है उनका एक तरफ तो कहना है कि हमें जो यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें टेक पार्ट करना होगा, और दूसरे नंबर पे बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत सी एक्सपेक्टेशन है हमारी कम्युनिटी की इस गवर्नमेंट से, यहाँ के हुकूमत से और ब्यूरोक्रेट्स से. सो उम्मीद की जाती है कि जो नई हुकूमत बनेगी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, वो हमारी जो एशियन कम्युनिटी है इनके मसाइल को हल भी करेंगे. जी. दारुल उलूम कादरिया जिलानिया वॉल्थम स्टोर लंदन में जुमातुल मुबारक का खुतबा पीर सैयद मजहर हुसैन शाह गिलानी ने दिया. इज्तिमाई जुमा से खिताब में उनका कहना था कि शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी हर पहलू से बेमिसाल और काबिल तकलीद है. गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट. लंदन के इलाके वाल्थम स्टोव की तारीखी, इल्मी और मजहबी दरसगाह दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में गुज़श्ता कई हफ्तों से जुम्मतुल मुबारक के खसूसी बयानात का सिलसिला जारी है. बाबरकत महफिल का आगाज़ खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में मनकबत से किया. सैयद मजहर हुसैन शाह ने खातून जन्नत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत पाक के हवाले से रूह परवर खिताब किया. उनका कहना था, यह महीना सैयदा तैयबा ताहिरा की विलादत का महीना है. उनकी ज़िंदगी का हर पहलू बेमिसाल और काबिल तकलीद है. जो दरवाजे पर सवाली आया होता था उसको अता कर देते थे. इस अमर की तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर फरमाई, और हज़रत सैयदा कायनात का ये अमल कुरान की आयतें बनकर क़यामत तक के लिए बाकी रह गया. 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खातून जन्नत की सीरत हमारी माओं, बहनों और बेटियों के लिए काबिल तकलीद है. 13 फरवरी को जश्न विलादत और सीरत सैयदा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी, जिसमें पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी खसूसी खिताब करेंगे. महीना जमादुल उखरा का महीना है और इसको हज़रत सैयदा कायनात हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मिलाद पाक से निस्बत है, जैसा कि इसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल पाक और उससे पाक से भी निस्बत है. तो हाँ, इंशाअल्लाह यहाँ पर दारुल में हम इस जुमरात को हज़रत सैयदा कायनात की सीरत के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, चूँकि हज़रत सैयदा कायनात वो हस्ती कि जो औरतों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए एक नमूना कामिल है. आखिर में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया. इस मौके पर पाकिस्तान, फ़लस्तीन और तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की गईं. गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन. लीड्स में शदीद धुंध ने डेरे डाल लिए. ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा. आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट. बरतानिया के शहर लीड्स और गिरदोनवा में सुबह सवेरे शदीद धुंध और सर्दी में इजाफा हुआ, जिसके बायस दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया. धुंध के बायस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा और काम पर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम का हाल बताने वालों ने हफ्ते और इतवार को शदीद तूफान के पेश नजर येलो वार्निंग जारी कर दी. इस दौरान 50 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का खतरा है. शहरियों को भी तूफान के पेश नजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई. आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स. माहिर कानून अमजद मलिक कहते हैं, बोरिस जॉनसन माजी में तारकीन वतन को कानूनी दर्जा देने की हिमायत करते चले आए हैं. उम्मीद है कि अब वो इस हवाले से इकदाम करेंगे. मैनचेस्टर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं. जी हाँ, बिल्कुल. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान जनाब अमजद मलिक साहब. ब्रेग्जिट के बाद की सूरत हाल जो चल रही है, जो कि लोगों के जहन में बहुत से सवालात हैं, और आज इनसे पूछते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियां लाई जा रही हैं. अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब. जी वालेकुम सलाम. जी, मेरा आपसे सवाल है, बल्कि मेरा नहीं, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि हज़ारों तारकीन वतन जो कि आम माफ़ी के इंतज़ार में बैठे हुए थे, आपका क्या ख्याल है, क्या तवक्को की जा रही है? मेरे ख्याल में बोरिस जॉनसन जब मेयर थे तो उन्होंने ख़ुद भी वज़ीर आज़म से कहा था कि जो लोग
सालों से बरतानवी इमिग्रेशन सिस्टम में स्टक हैं, उनको काम के वीज़े दिए जाएं ताकि वो काम करें, टैक्स दें, सिस्टम में शामिल हों और लीगलाइज करें अपना स्टे और मुल्क की कौम की खिदमत करें। अब भी यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म हैं, उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशंस हैं और मेरे ख़्याल में हज़ारों नहीं लाखों लोग पुराने सिस्टम में स्टक हैं, तो उनको आम माफ़ी मिलनी चाहिए। मैं भी समझता हूँ जो लोग यहाँ 5 साल से मुकीम हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, काम कर सकते हैं, बासलाहियत हैं, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको आम माफ़ी मिलनी चाहिए। वो काम करें, टैक्स दें, सिस्टम का हिस्सा बने। इससे बरतानिया को लाखों पाउंड टैक्स की मद में आएंगे, रादर देन कि वो उनको सिस्टम में रहने दें और वो इस्तेहसाल का शिकार हों, कम पैसों पे काम करें या इलीगली काम करें या हर वक्त डरते रहें कि उनको मुल्क से निकाल ना दिया जाए। तो आम माफ़ी बर वक्त है और वक्त का तकाजा है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि ब्रेक्जिट के बाद साउथ एशिया से बासलाहियत अफराद का बरतानिया में आना मुश्किल होगा या आसान होगा? लाखों लोग मुल्क छोड़ के जाएंगे ब्रेक्जिट की वजह से और लाखों जॉब्स निकलेंगी यहाँ। तकाजा यही है वक्त का कि वहाँ से जो लोग स्किल्ड हैं, जो हाईली स्किल्ड हैं, जो पुराने ज़माने में पॉइंट बेस्ड सिस्टम था या पुराने ज़माने में तारकीन वतन को इकनॉमिक सिचुएशन बेहतर करने के लिए आने के मौके थे, वो इन्होंने पिछले 10 सालों में बहुत महदूद किए हैं। वो बेहतर होने चाहिए, वर्क परमिट आसान होना चाहिए, यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, बाकी टूर एंड ट्रैवल एंड टूरिज़म में मौके बढ़ सकते हैं और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरह के ममालिक में से जो यंगस्टर्स हैं उनको आने के मौके बढ़ सकते हैं और बढ़ने चाहिए। इन्होंने ऐलान किया है कि जो स्टूडेंट इस साल दाखिला लेंगे उनको डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। ये एक अच्छी खुशाइन बात है। फरवरी में भी रिसर्चर्स के लिए जॉब्स या मौके खुल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की जॉब मार्केट में अंदेशा है कि निकलेंगे मौके, उसके लिए ज़रा बेहतर और आसान तरीका होना चाहिए कि हाईली स्किल्ड माइग्रेंट पॉइंट बेस पे या किसी दूसरे वर्क परमिट रजीम आसान होना चाहिए या किसी ज़माने में वर्क वीज़ाज मिलते थे साल के, उस तरह के कोई सिस्टम लाना चाहिए ताकि लोग यहाँ पे अपनी कमी पूरी कर सके और एम्प्लॉयर्स को आसानी हो कि वो जॉब मार्केट में, कंपेटिटिव मार्केट में से अपना हिस्सा ले सकें। तो क्या हम ऑस्ट्रेलियन तर्ज का पॉइंट सिस्टम जो है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम, वो देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं? आप होना चाहिए मेरे ख्याल में। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड सिस्टम का ये फायदा कि आप पॉइंट के ऊपर आएंगे, आपके पास डिग्री है, तजर्बा है, आप यहाँ खिदमत कर सकते हैं और आपको कोई इतना लंबा चौड़ा चीज़ें बतानी नहीं पड़नी। एम्प्लॉयर आपको हायर करता है और वर्किंग वीज़ा के ऊपर टीयर 1 को ये अमेंड कर सकते हैं और बंदा आ सकता है। पुराने ज़माने में हाईली स्किल्ड माइग्रेंट यहाँ था, बहुत से लोग आए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सें, हॉस्पिटल, ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो मेरे ख्याल में ऐसा सिस्टम बरतानिया के मफाद में होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मलिक साहब ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन तर्ज का सिस्टम, पॉइंट सिस्टम जो है वो बेस्ट सिस्टम है, स्पेशली डिग्री होल्डर्स के लिए। तो ये सिस्टम होना चाहिए, बरतानिया में भी इस सिस्टम को राइज होना चाहिए। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्विट्जरलैंड के दारहुकूमत बर्न में पाकिस्तानी सफारत खाने ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें कश्मीर में जारी 5 माह से लॉकडाउन और भारतीय मजालिम की मजम्मत की गई। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। स्विट्जरलैंड के दारुल-हुकूमत बर्न में मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए सफारतखाना पाकिस्तान में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शरीक शुरका ने मकबूजाबादी में निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरी बहन भाइयों पर जारी इंडियन फोर्सेज के बेपनाह मजालिम, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और उनके हक के खुद इरादियत के लिए उठी आवाज को दबाने के लिए रियासती जबर और 5 महीनों से जारी लॉकडाउन और कत्लेआम की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान अहमद नसीम बड़ाइच ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पैगाम पढ़कर सुनाए। सफीर पाकिस्तान ने खिताब करते हुए कहा कि हम इंडियन फोर्सेज की जालिमाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों की जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले और कश्मीरियों के हुकूक के लिए उनका साथ दे। Pakistan and the international community
have rejected India's diversity of law and justice. India has turned 8 million Kashmiris into prisoners in their own land through the deployment of over 900,000 occupation troops. अहमद नजीम मराइद का कहना था कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमें यकीन है कि कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होकर रहेगा। कश्मीरी हम ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनकी एकजुटता के लिए, उनकी सॉलिडारिटी। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझे और हम हमेशा उनके साथ हैं। एज ए पाकिस्तानी हमेशा उनको यकीन दिलाते हैं कि जिस मोड़ पे, जिस जगह पे उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए रखेंगे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बर्न, स्विट्जरलैंड। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में पार्लियामेंट के सामने यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुजाहरा हुआ, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और कश्मीरियों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में भी कौमी पार्लियामेंट के सामने यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुजाहरा हुआ और इस मसले को कई बार उठा चुके हैं। ओस्लो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर तोरन अरिंसन सज्जाद ने नॉर्वे की हुकूमत से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने के लिए भारत पर दबाव डाला जाए। सफारत खाना पाकिस्तान वाशिंगटन DC में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर लोगों को खराज तहसीन पेश किया। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों के हक और हक खुद इरादियत के मुतालबे के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। सफीर पाकिस्तान का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान भारतीय पॉलिसियों और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करने की मुहिम की क़ियादत कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने हक के लिए एक होकर दुनिया भर में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तकरीब के दौरान कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय जुल्म सितम के हवाले से दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश भी की गई, जिसे देखकर तकरीब के शुरका अफसरदा हो गए। तकरीब में पाकिस्तानी, अमरीकी और कश्मीरी कम्युनिटी के मुमताज मेंबरान, सिविल सोसाइटी, मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। शारजा में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम के एजाज़ में गुज्जर यूथ फोरम UAE की जानिब से शानदार इस्तकबालिया दिया गया। परवकार तकरीब में मालाकंड डिवीजन के हाजी सरदार रजा खान और लीगी रहनुमा हाजी जलाद खान ने उनके खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए यादगारी शील्ड से नवाजा। तकरीब का मजीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर इंजीनियर अमीर मुकाम इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। गुज्जर यूथ फोरम शारजा की जानिब से उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें KPK से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा शख्सियात समेत नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शारजा में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम अपने एजाज़ में एक बड़े इस्तकबालिया से खिताब में इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि मुल्क को हैंडसम वज़ीर आज़म मिल गया, लेकिन उसने पूरे मुल्क का होलिया बिगाड़ कर रख दिया। गरीबों की चीखें बद दुआओं में तब्दील हो चुकी हैं और हर पाकिस्तानी नालायक और नाअहल हुकूमत से निजात की खबर सुनने के लिए बेताब है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने तबाह हाल मईशत को संभाला और उसे 5.8% की शरह तरक्की दी, रुपए को गिरने नहीं दिया और डॉलर को काबू में रखा। 12,000 मेगावाट बिजली बनाई, 20,000 किलोमीटर सड़कें और मोटरवेज का जाल बिछाकर कौमी तरक्की की रफ्तार तेज की। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मुकाम ने कहा कि नियाजी रोना वायरस से मुल्क बीमार हो गया, जिसका इलाज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत से ही मुमकिन है। अवामी तरक्की के एजेंडे की वैक्सीन से ही नियाजी वायरस से मईशत सेहतमंद होगी। वैसे तनकीद नहीं किए, हर एक बात दलील के साथ कही है कि इमरान खान के आने के वक्त क्या सूरत हाल थी, GDP क्या थी, दूसरे ग्रोथ क्या थी, हर एक चीज़। तो मैंने कहा उसकी फिर हल होना चाहिए ना। लोग चाहते हैं कि वही मरज़ तो आ गया वायरस इमरान खान की शक्ल में PTI, तो इसका वैक्सीन चाहिए। तो मैंने कहा इसकी वैक्सीन सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PMLN है कि वही उस वैक्सीन से इस मुल्क को निजात मिल सकती है और इस वबा से जान छूट सकती है। उनका मजीद कहना था कि आज बिजली, गैस, खाने पीने की अशिया की महंगाई ने कौम को जिंदा दरगोर कर दिया है। हर घर से बददुआएं दी जा रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कौम नालायक, नाअहल और करप्ट टोले से बेजार है और इससे निजात की दिन रात दुआएं मांग रही है। जो सब्ज़ बाग लोगों को दिखाए थे
अभी सबको एहसास हो रहा है कि उसमें उनके साथ धोखा हुआ है और उसमें वही टोटली नाकाम रहे। जितने पाकिस्तानी थे और कितने तंग आ चुके हैं, मैंने पहली दफ़ा ये हम हर वक्त जाते हैं उम्रे के लिए, तो वही भी लोग सारे बद्दुआएं दे रहे थे। अमीर मुकाम ने इमरान खान की हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि जो हीरो बनकर कौम पर मुसल्लत हुए थे 18 माह में 0+ साबित हुए। चेंज मुल्की इंटरेस्ट में आएगा, मुल्की इंटरेस्ट में आएगा और इस बुनियाद पर लोगों की एक माइंड अभी बन गई है कि, और उन लोगों की भी सबकी माइंड बन गई जिन लोगों ने पीटीआई को वोट किया है। चंद लोग नहीं कह सकता हो, इमोशनल जज्बाती। अभी उनसे भी जब हम पूछते हैं कि वो कहते हैं बिल्कुल मैंने वोट दिए और बहुत गलती की। इस्तकबालिया से गुज्जर यूथ फोरम के रहनुमाओं और कबायली अमायदीन ने भी खिताब किया और नवाज शरीफ की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, शारजा, मुत्तहिदा अरब अमारात। साबिक क्रिकेटर नासिर जमशेद और उनके 2 साथियों को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने मैच फिक्सिंग में मुलव्वस होने पर आज सजा सुना दी। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद से। जी राजा वाजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, साबिक क्रिकेटर नासिर जमशेद पर एक T20 मैच में साथी खिलाड़ियों को रिश्वत देने का इल्ज़ाम था, जिस पर नेशनल क्राइम एजेंसी इस मामले की तहकीकात कर रही थी। तहकीकात के बाद नासिर जमशेद और उनके साथियों मोहम्मद इजाज़ और यूसुफ अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। केस की समाअत 3 दिसंबर से जारी थी। नासिर जमशेद के दीगर दोनों साथियों मोहम्मद इजाज़ और यूसुफ अनवर ने तफ्तीश के दौरान ही अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम का एतराफ़ कर लिया था, जबकि नासिर जमशेद ने आज क्राउन कोर्ट में अपने जुर्म का एतराफ़ किया, जिसके बाद क्राउन कोर्ट के जज ने नासिर जमशेद को बिलतरतीब 17 माह, मोहम्मद इजाज़ को 2.5 साल और यूसुफ अनवर को 3 साल की सज़ा सुनाई, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले गई। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।